everyone and welcome back to the Science Hub. Myself Purvi Dubaria, and today we are going to learn about ornithology, that is the study of birds, types of feather, structure and their forensic significance. Now what does ornithology means? It is the study of birds, and obviously we are going to relate it with the forensic, and so we are going to study about how does ornithology help us in the forensic, and what are the types of feathers and their structure. Ornithology is the study of birds. Ornithology has helped in the study of different ecological principles such as niche segregation, that is applied to the field of the ecology, which refers to the process by which competing species use the environment in different way with the coexisting species. Then island biogeography, which includes the study of past and present of animal and plant distribution patterns on the island and how does it is created. Then effects of environmental degradation. In environmental degradation, various terms are included such as deforestation, acid rain, natural disaster or the disease, then landslides, and many more. And today we are going to consider the factor deforestation. For the example, how does deforestation affects our environment? Then is we lost the species, then soil erosion takes place, then loss of the forest product, then reduced absorption of CO2, then loss of our traditional culture. Then the last factor is the indicator species. Indicator species, a species whose status provide information on overall condition of ecosystem and other species in that ecosystem. इंडिकेटर स्पीसीज जो स्पीसीज है जो हमें ओवरऑल एनवायरमेंटल या इकोसिस्टम की कंडीशंस बताता है और उसके अंदर जो दूसरी स्पीसीज रह रही है उनके बारे में भी बताता है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द क्वालिटी एंड द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन. मतलब जो क्वालिटी हो रही है उसमें चेंजेस हो रहे हैं और दूसरे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज हो रहे हैं उनके बारे में भी हमें इंडिकेटर स्पीसीज बताता है. Then it emphasizes on the ecological research that is concerned with the relation of living organism to one another and their physical surroundings, and also includes the change in the population, metabolism in the field, genetics, that is the origin and the heredity of the species, taxonomy, that is the classification, and fossil records. Birds characteristic. There are about 9,000 species of birds in about 170 families with 1 to 300 birds per family. मतलब टोटल हमारे पास 9,000 स्पीसीज है बर्ड्स का, और जो टोटल कितने फैमिली में, तो 170 फैमिलीज, और पर फैमिली में 1 से 300 तक बर्ड्स है. बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय feathers, that is one of the soft fringe plumes, that is the border of hair that covers the body. Then homeothermy, it is the thermal regulation that maintains the stable internal temperature without any external influence. Then laying of eggs, lack of teeth. Then pneumatic bones, it is a hollow bone which connect the bird's respiratory system. मतलब एक hollow bone है जो birds के respiratory system को connect करता है और जो भी उनके अंदर एयर फिल्ड कैविटी होगी उसे एनक्लोज करेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए बर्ड्स में. देन एडेप्टेशन टू फ्लाइट. देन स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब उनकी बॉडी उस तरह से होती है कि उनको फ्रिक्शन होगा जो उनके फॉरवर्ड मूवमेंट के तरफ वो रेजिस्ट करे या फिर उनके अगेंस्ट ना जाए. देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेट, एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म. Then visual acuity, it refers to the shape and the details of the thing they see, and it is the one factor of overall vision. Then motor development of brain, which includes that when the bird starts immediately sings the song, और जो भी उनके इनिशियल स्टेज में जब वो सुन के कुछ भी चिपरिंग साउंड्स है या तो फिर सिंग्स, मतलब कुछ भी
सॉन्ग्स है जो वो वॉइस है उनके जो आने लगे, दैट इज द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. नाउ सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज. The first is the avifauna. That is the set of the birds in defined area. मतलब एक डिफाइंड या पर्टिकुलर एरिया में कितने बर्ड्स हैं that are considered. Then diversity of avifauna is dependent on both climate and the vegetation structure. मतलब जो भी avifauna के अंदर diversity होगी वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. That is the climate and vegetation. Climate यानी वहाँ का जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग दूसरे फैक्टर है तो वेजिटेशन स्ट्रक्चर कैसा है. यहाँ पे एग्जांपल लिया है. दैट आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बर्ड स्पीसीज वेर डाइवर्सिटी एंड टुंड्रा हैव द लीस्ट. तो ट्रॉपिकल में ज़्यादा क्यों है, तो मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे इन विच बर्ड्स कैन लिव एंड दे आर गेटिंग द वेजिटेशन प्रॉपरली, एंड टुंड्रा हैव द least vegetation and the climate or the temperature is the least and it is the coldest place, that's why it have the least diversity. Second point है resident. They include the bird species that do not enter or leave the stage of migration. मतलब जो भी स्पीसीज है माइग्रेशन के टाइम पे कहीं एंटर नहीं होगी या तो फिर कहीं जाएगी नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही हमें मिलेगी. दैट आर टर्म्ड एज द रेसिडेंट. फॉर एग्जांपल द स्पॉटेड आउल्स, डव्स, पिजन्स. देन द थर्ड इज ट्रांजिएंट. These birds migrate during the spring and or fall but do not nest in area. मतलब जो भी बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन के टाइम पे यानी स्प्रिंग के टाइम में चली जाएगी वो स्पीसीज होती है ट्रांसिएंट. उसके एग्जांपल्स हैं रिंग बिल्ड गर्ल्स, हॉक्स एक्सेट्रा. देन पेरेनियल विजिटर्स. पेरेनियल विजिटर्स द बर्ड स्पीसीज ऑफ विच इंडिविजुअल आर फाउंड ऑलवेज अराउंड. मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है जो हमें हर जगह देखने मिलेगी. देन द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज द कैजुअल और द accidental visitors. By the name itself we can see that this individuals occurs unexpectedly, यानी accidentally कोई जगह पे मिल जाती हो ऐसी species. Now parts of feather and their description. Parts of feather, उसमें first point है shaft. That is the main central support that run along the feather length of the feather. मतलब जो मेन एक सेंट्रल वेन होती है उनमें वो एक सपोर्ट है और जो फेदर के अलॉन्ग रन करता है उनके लेंथ के साथ साथ. देन सेकेंड इज द वेन, द पार्ट ऑफ फेदर दैट गिव्स द फेदर इट्स ओवरऑल शेप. फेदर का वो पार्ट जो उसको ओवरऑल शेप देता है फेदर का, और वो दोनों मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. देन थर्ड इज द रैचेस, द पार्ट ऑफ शाफ्ट वेयर द वेन्स आर लोकेटेड. शाफ्ट का वो पार्ट जहाँ पे भी वेन्स लोकेटेड होगी उसे हम रैचेस कहेंगे. देन क्यूल और द कैलेमस, द एक्सपोज्ड बेस ऑफ द शाफ्ट. मतलब जो शाफ्ट होगा उसका जो एक्सपोज्ड बेस होगा नीचे उसे हम लोग कहेंगे कैलेमस. फिर बार्ब, द वेन ऑफ फेदर्स इज वेरी इंट्रिकेट. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर टर्म्ड एज बार्ब. दे आर लेड आउट इन द पैरेलल रो विच एक्सटेंड फ्रॉम द रैचेस. मतलब जो भी पोर्शन है जो रैचेस से एक्सटेंड होगा और पैरेलल होगा उसे हम लोग बार्ब कहेंगे. देन बार्ब्यूल्स, दैट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फेदर्स. द स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द बार्ब आर कॉल्ड द बार्ब्यूल्स. दिस बार्ब्यूल ओवरलैप अदर बार्ब्यूल फ्रॉम द नेबरिंग बार्ब. Then pinaceous barb. These are the primary branch of the rachis that further subdivides into flattened barbules. These barbules are typically characterized by having interlocking or the hook barbicles. मतलब जो भी इनकी कैटेगराइज होंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे इंटरलॉकिंग होगी या तो फिर हुक बार्बिकल्स होंगे, और ये आगे जाके सब डिवाइड्स होते हैं फ्लैटेंड बार्ब्यूल्स के अंदर. देन प्लूमेलेशियस बार्ब. These are the branches of the rachis of the most counter feathers
but these barbs are located at the very base of the feather and are fluffy in appearance. ये plumelaceous barbs होंगे वो एकदम बेस की तरफ लोकेटेड होंगे और फ्लफी होंगे अपीयरेंस में. देन बार्बिकल्स एट द एंड ऑफ द बार्ब्यूल्स आर द बार्बिकल्स. मतलब जो भी बार्ब्यूल्स हैं उनके एंड में होंगे वो बार्बिकल्स होंगे. दिस आर द टाइनी हुक दैट आर कनेक्ट बार्ब्यूल्स टू ईच अदर. मतलब एक टाइनी हुक होंगे जो एक बार्ब्यूल को दूसरे बार्ब्यूल से कनेक्ट करेंगे. सो हियर वी कैन सी इन द फिगर, हियर इज द वेन, then shaft or the calamus, the shaft that runs along with the length of the feather. Then vein, this part of the feather is termed as the vein. Then rachis, the smallest portion, here we can see the smallest portion they have considered is termed as the rachis. Then calamus, that is the exposed base structure. And here this fluffy appearance we can see that are termed as the pulmolaceous barb. And here we can see the interlocking and the hook structure, and these parallel brown lines are the barbules. Then feather tract. Feather tract is termed as the distribution of feathers is not uniform over all the surface of the स्किन. मतलब जो भी बर्ड्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो फेदर्स का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है और डिफरेंट एरिया पे किस तरह से होता है वो बताए. तो कैपिटल यहाँ पे द लेस अमाउंट ऑफ फेदर या तो फिर छोटे छोटे फेदर्स होंगे जो उनकी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं. उस तरह से डिफरेंट एरिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बताया. देन हियर आर द प्राइमरी विंग फेदर. हियर वी कैन सी द पिनासियस बार्ब, then pulmolaceous barb, calamus, that is the exposed part of the shaft, and posterior vein, notch, then rachis, that is the smallest portion of the shaft, then anterior vein. And the second image says the different types of feather. Then feather types and topography. Here we can see the feather type and their general description. So first is the wing feather. It is specialized for the flight. मतलब flight के लिए specialized है feather. Then presence on the uniform wing roof surface on either side of the central shaft created by interlocking microstructures. यूनिफॉर्म होंगे सरफेस पर और दोनों साइड्स पे होंगे. सेंट्रल शाफ्ट होगा उसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट रहेंगे और उनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरलॉकिंग होगा. दे आर ऑल्सो नोन एज द रेमिजेस. अटैच टू द बोन ऑफ द विंग, दे आर स्टिफ एंड लेस फ्लेक्सिबल इन नेचर. जो भी बोन्स होंगे उनसे अटैच रहेंगे एंड स्टिफ होंगे और फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ज़्यादा नेचर. देन टेल फेदर्स ऑल्सो नोन एज द रेक्ट्राइस, दैट इज द लार्ज फेदर प्रेजेंट ऑन द बर्ड्स. देन इंटरलॉकिंग माइक्रोस्ट्रक्चर है और ये सिमिलर होते हैं विंग फेदर से. देन रेक्ट्राइस प्रोवाइड लिफ्ट एंड एक्ट एज अ रडर टू स्टीयर द बर्ड व्हाइल द फ्लाइट. मतलब एक रडर की तरह काम करेंगे और लिफ्ट करने में ज़्यादा काम करेंगे और स्टीयर द बर्ड व्हाइल द फ्लाइट. मतलब उनके डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे. देन थर्ड इज द काउंटर फेदर्स. कवर्स द बर्ड्स एंटायर बॉडी. जो छोटे छोटे फेदर्स होंगे जो बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करते हैं दैट आर टर्म्ड एज द काउंटर फेदर्स. और बहुत ही अच्छी तरह से कलर्ड होंगे, ब्रिलियंटली कलर्ड, हैव द फ्लफी बेस एंड टग क्लोज टू द बॉडी. मतलब इनका जो बेस रहेगा हियर वी कैन सी वो फ्लफी रहता है और बॉडी से वो ज़्यादा क्लोज होंगे. देन डाउन फेदर्स, loose branching structure. By the figure itself we can understand that. No developed rachis, उनके अंदर rachis पूरी तरह से develop नहीं होगा. Then it is relatively short, present close to the body to trap the body heat. मतलब बॉडी से वो क्लोजली प्रेजेंट होंगे और बॉडी हीट को ट्रैप करेंगे. दिस फेदर्स कंटिन्यूसली ग्रो एंड आर नेवर मोल्टेड. ये फेदर्स होंगे वो कंटिन्यूसली
ग्रो करते ही रहेंगे. देन नेक्स्ट इज द फिलोप्लूम्यूल. वेरी फ्यू बार्ब्स एंड एक्ट एज अ एनिमल विस्कर. बहुत ही कम बार्ब्स होंगे और एनिमल विस्कर की तरह काम करेंगे. एनिमल विस्कर होता है दैट आर उनके उसके तरह से कैसे काम करता है, तो वो लो लाइट में सेंसेशंस प्रोवाइड करेंगे. देन एक हेल्पिंग मूव की तरह काम करेंगे और ऑब्स्टेकल या तो वॉल्स होंगे उनके तरफ मतलब टकराने से वो रेजिस्ट करेगा उनको. दे मॉनिटर द पोजिशन ऑफ द फेदर ऑन द विंग्स एंड द टेल. और जो भी पोजिशंस होंगी फेदर्स के विंग्स या तो टेल पे उनको मॉनिटर करेगा. देन द नेक्स्ट इज द सेमी प्लम. शॉर्ट सिंपल फेदर्स विद बार्ब हैविंग फ्यू बार्बिल्स. शॉर्ट और सिंपल फेदर्स रहेंगे और बार्ब्स होंगे जिनके अंदर फ्यू बार्बिल्स यानी कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो, thus गिविंग अ फ्लफी स्ट्रक्चर. और कम अमाउंट में होगा और शॉर्ट और सिंपल है उसकी वजह से हमें एक फ्लफी अपीयरेंस दिखता है उसके अंदर. बिलो काउंटर फेदर्स, जो भी हमारे काउंटर फेदर्स है यानी कि जो पूरी बॉडी को कवर कर रहे थे फेदर, उनके नीचे ही होंगे, मोस्टली हिडन बिनेथ द अदर फेदर्स. और जो भी फेदर्स होंगे ना उनके नीचे होते हैं हिडन. देन नेक्स्ट इज द ब्रिस्टल. simplest form of feather, stiff branches that usually lack of barb branches. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फेदर का और स्टिफ होगी रैचेस उसकी जिसके अंदर बार्ब्स और उनके ब्रांचेस नहीं होंगे. कॉमनली फाउंड ऑन द हेड टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स आई एंड फेस. और ये जो ब्रिस्टल फेदर्स होंगे वो कॉमनली बर्ड्स के हेड पर मिलेंगे जो है ना बर्ड्स के आईज और फेस को प्रोटेक्ट करेंगे. Now last, that is the forensic significance of the ornithology. It is helpful in solving the airplane bird strike cases. Identification of the bird species is crucial for wildlife law enforcement and other aspects of wildlife forensic. जो भी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है उनके रिलेटेड कुछ भी क्राइम है या तो कोई नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे हैं तो उनके अंदर बर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो हम लोग बर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक ऑर्निथोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. अदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सच एज बर्ड लार्सेनी में ऑल्सो contingent upon accurate species identification of the bird's feather. जो भी लारेंसी केसेस है मतलब किलिंग के केस है जो पर्सनल बेनिफिट के लिए हम हमारे यूज़ कर सकते हैं वो केसेस हो रहे हैं. उसके अंदर हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो बर्ड्स के जो फेदर होंगे उसके वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन डीएनए इज टिपिकली आइसोलेटेड फ्रॉम कैलेमस सेल रिक्वायरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ 5 to 10 mm ऑफ द फेदर शाफ्ट टर्मिनस. जो भी उनका डीएनए होता है वो आइसोलेट होता है, उनके कैलेमस सेल्स होंगे उससे आइसोलेटेड रहता है. तो हम लोग उसके थ्रू डीएनए हम लोग फाइंड कर सकते हैं और that would be helping in the solving the cases. Other studies have also successfully obtained DNA from the blood clot located in the superior umbilicus of the feather shaft. और दूसरे भी मतलब स्टडीज़ ने हमें ये सक्सेसफुली ऑब्टेन किया है कि ब्लड क्लॉट होगा जो उससे भी हम डीएनए कैसे रिकवर करके उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉरेंसिक साइंटिस्ट might now be able to take accurate and detailed fingerprint from the rare bird feathers. मतलब जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो भी मतलब सक्सेसफुल हो गए कि फिंगरप्रिंट या तो फिर डिटेल फिंगरप्रिंट फेदर्स में से आइडेंटिफाई करें. दैट कुड बी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ऑफ द पोचर्स ऑफ द रेयर बर्ड्स हु ऑफन हैंडल द query after shooting, trapping and poisoning them for the sport or their stunning plumage. मतलब जो भी बर्ड्स हैं जिनका हंट हो रहा है या तो फिर कोई अपने पर्सनल यूज़ की वजह से उसे शूट कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं या तो फिर उन्हें पॉइजन दे रहे हैं फॉर द स्टनिंग प्लमेज यानी जो फेदर्स के वजह से, तो उस केस में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ द फेदर्स और उनके टाइप्स कैसे हैं. And we can further go for the identification of the species too. So this way forensic ornithology helps us in many ways. Thank you and keep visiting Science Hub.